Welcome everyone to our webinar, 8 Common Mistakes That May Destroy Your Wealth. We have with us our speaker, Mr. Lalit Manocha. Mr. Lalit Manocha is founder and CEO of LM Financial. He carries overall 45 years of work experience. He's a graduate engineer and MBA from New Delhi. He has worked with TCS for 17 years and thereafter worked with Tata Share Registry as general manager. After completing his 25 years in service with Tata Group of Companies, Mr. Manocha took voluntary retirement and decided to do something different, which may bring a positive change in lives of people. Although his background was from computer software engineering, but in June 2002, he started his own company in the financial industry and named it LM Financials and Management Consultants at New Delhi. With the vision of his organization is to guide people and transform their life and make their families achieve financial freedom. He has 20 years of experience in industry of insurance and mutual fund till now. He has been awarded MDRT and Best Mutual Fund Advisor many times from multiple companies. And now Mr. Manocha is pursuing his mission to make 1,000 individual crorepati and financially free. Let's welcome Mr. Lalit Manocha. LM Financials. In investing, what is comfortable is rarely profitable. About us. We're LM Financials and Management Consultants. A team of highly qualified and skilled professionals. With a mission to enable clients to achieve complete financial independence. Incorporated in 2002. With a core belief of forming long-term trusted relationships with our clients. We have since grown to a network of more than 1,000 satisfied clients. Our vision. As a firm, we focus on helping every client to achieve their financial goals as well as understanding their unique purpose. Our goal is to help our clients achieve their financial goals with effective and smart investment planning. Awards and accolades. Our passion, determination, and a strong belief in our vision and mission enabled us to achieve numerous accolades from many reputed organizations in India and abroad, which demonstrates our excellence as investment and insurance advisors. Time and again, advisors from LMFC have been invited to attend the MDRT annual conferences in Miami, Los Angeles, and Orlando, USA. Our chief advisor, many times has been qualified and awarded as top performing insurance advisor by Reliance Life, Tata AIA Life and Edelweiss Tokyo Life at Singapore, Bangkok, Dubai, and Johannesburg. We have achieved many accolades such as the Annual Sales Congress Club, Prudent Loyalty Club, and many more. Our core values. Benefits of clients come first. Long-term relationship building, ethical practice, transparency, right attitude. Our products. With recognized certifications from AMFI and IRDA. We provide advisory and distribution services for all types of financial products available in the Indian market including mutual funds, portfolio management service, PMS, fixed income products, corporate and government bond, insurance, loans. Our services.
Portfolio management. Financial planning. Tax planning. Child education and marriage planning. Retirement planning. Contact us. Hello, good evening everybody. Welcome to my financial wellness program. पहले भी मैं कई बार कंडक्ट कर चुका हूँ और ये मेरा एक ग्रुप है जिसमें आपको ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मैनी टाइम आई डू द फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स, और इसमें ये भी एक पार्ट है आज का जिसमें हम कवर करने वाले हैं जो कि 8 जो कॉमन मिस्टेक्स एक आदमी करता है या इन्वेस्टर करता है जिससे हम लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो वो कौन सी 8 मिस्टेक्स हैं उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। पहले तो मैं आप सबको इंडिपेंडेंट डेज की हैप्पी इंडिपेंडेंट डेज का एक शुभकामनाएं दूं। साथ में ये भी कहूँगा कि आपने ये टाइम कहीं भी लगा सकते थे, तो आपने भी ये महसूस किया कि ऐसी कुछ चीज़ जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ ऐसी बता सकता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इसीलिए आपने अपना टाइम यहाँ डिवोट किया है। और थोड़ा आपका 45 मिनट्स का टाइम करीब ये लगेगा इसमें जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो ये डेफिनेटली मेरी तरफ से भी एक प्रॉमिस है कि आप लोगों को जो 45 मिनट्स मेरे को यहाँ देने वाले हैं तो इसका भी पूरा आपको फायदा मिलेगा। काफी सारी चीजें शायद कुछ हो सकता है आपको मालूम हो, बट काफी सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने कभी समझा नहीं होगा या जाना नहीं होगा। तो हो सकता है कि भाई ये जो है आपको ये बहुत बेनिफिशियल करे ये पॉइंट्स भी, और आप और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी थोड़ा आगे गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये यूजफुल लगेगा तो डेफिनेटली आप भी औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वेबिनार, और इसके ऊपर मैं स्टार्ट करता हूं आपका स्लाइड बाय स्लाइड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वेबिनार है जो मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ इसे ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इसको ना तो आप किसी एडवाइस की तरह लें, बट सिर्फ आप मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत माने। बाकी जरूर है कि डेफिनेटली आप इससे कुछ लर्न करेंगे तो आपको ये बेनिफिट ही देगा आगे फ्यूचर में। नो मैं आप स्टार्ट करता हूँ इससे कि भाई आपको शायद मालूम है, वैसे तो मालूम रहता ही है काफी लोगों को, बट फिर भी कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो है करंट मंथली एक्सपेंसेस जो आज की डेट में 30,000 रुपए के करीब हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जिस तरह से इन्फ्लेशन चलती है तो ये 20 साल के बाद ये एक्सपेंसेस 30,000 से बढ़ के 1,16,000 हो जाएंगे पर मंथ। नाउ यू कैन थिंक हाउ मच मनी यू विल बी रिक्वायर आफ्टर 30 मंथ्स। एक्चुअल में सॉरी टू से मैं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी में है तो मैं दोनों मिक्स ही करूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश यूज करूंगा इस प्रोग्राम में। सो अगर कुछ के लोगों को प्योर इंग्लिश समझ में आती है तो थोड़ा उनसे क्षमा चाहता हूँ, पार्डन मी फॉर दैट। सो आई विल यूज मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश फॉर एवरीबडी, तो सबको ये बेनिफिट मिले इसका। सेकेंड पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आज की डेट में जो महंगाई के हिसाब से चल रहा है, अभी अगर आप देखेंगे करंट कास्ट अगर कोई एजुकेशन में 20 लाख के करीब है तो उसकी आने वाले 11 साल के अंदर आप देखेंगे ये डबल हो जाना है, 42 लाख के करीब हो जानी है। तो अगले 10 साल में ये कॉस्ट खुद को आप सोचिए कि एक बच्चे की जो आज एजुकेशन सोच रहे हैं आगे आने वाले आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चे की एजुकेशन की। अगर पास्ट में भी देखें थोड़ा सा रिकॉर्ड तो देखिए आप, 1990 में पेट्रोल का प्राइस था 9 रुपये 84 पैसे। नो अगर आप देखते हैं 2020 में या 22 में इसका प्राइस 100 रुपीज हो गया। इट्स नाउ 10 टाइम्स मोर, मतलब 32 ईयर्स के अंदर ये 10 टाइम्स बढ़ चुका है प्राइस की। तो आप ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि हर 3 साल में ये करीब 1 गुना बढ़ता जा रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें सेंसेक्स को, सेंसेक्स इज नथिंग बट टू मेजर द इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री के मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है जिससे हमें पता लगता है इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, ग्रो हो रही है या अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उससे हम देखते हैं उस इंडेक्स को तो 1990 में ये इंडेक्स था 700 पॉइंट्स पे, और आज हम देखते हैं 2022 में तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 60,000 पॉइंट्स। नो आप देखें 32 ईयर्स के अंदर 85 टाइम्स ये इंडेक्स बढ़ चुका है। मतलब हमारी इन्फ्लेशन के साथ जो प्राइसिंग है ऑफ इंडस्ट्री, इसका भी प्राइस 85 टाइम्स हो चुका है। इसीलिए जो ज्यादातर आप देखते हैं शेयर मार्केट में ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो अगर आप देखेंगे तो सब जगह में ये 85 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हुआ है सेंसेक्स, तो आपके शेयर प्राइस भी उसी तरह से ग्रो करते हैं और काफी पैसा बनता है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं, अगेन दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो भी मैं आगे एडवाइस दे रहा हूं या आपको आगे कुछ कंपनीज के नाम भी आएंगे, या वो जस्ट दीज आर फॉर द एग्जांपल। आप उसको मतलब नेगेटिव साइड या उसके कंपनी की बुराई वगैरह की तरफ ना ले जाएं। ये जस्ट एग्जांपल हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। आने वाले टाइम में क्या होगा वो हम अभी भी नहीं जान सकते हैं कि कैसा रहेगा, बट आज की डेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना लें, इसको जस्ट एज ए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें। और अगर आपको कोई ऐसी चीजें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो डेफिनेटली जरूर किसी एडवाइजर का हेल्प लें। शुरू करने से पहले फर्दर, बिकॉज अभी वेबिनार अभी 8 पॉइंट्स जो हमने कवर करने हैं, उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे जो वेबिनार है वो सिर्फ किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, ये थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोग अगर बैठे हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मतलब ये आपके लिए प्रोग्राम है। अगर आप थोड़ा अगर अभी शुरू करा है या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए है। अगर आप एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं, एनीबडी हु हैज मनी एंड ही वांट टू ग्रो हिज मनी, उसको अगर वेल्थ बनाना चाहते हैं और उस वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम सीरियसली उन्हीं के लिए है। और वो सीरियसली अगर इस पॉइंट को लेना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम, ये भी बताना जरूरी है कि ये प्रोग्राम किन के लिए है। तो आप लोग बैठे हैं ही, और अगर जो कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई शॉर्टकट होगा या कोई फिक्स होगा और आपकी मल्टी पैसे जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद इन 2 ईयर 3 ईयर डबल हो जाएंगे, ऐसा यहाँ इस प्रोग्राम में कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी उम्मीद से बैठे हैं तो वो बेशक है सोच सकते हैं कि भी ये उनके लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर आप कमिटेड नहीं हो और सीरियस नहीं हो और अपने प्रोफेशनल गोल्स के बारे में आगे फ्यूचर में सोचना नहीं चाहते, जस्ट अगर आप बहुत ही लाइटली लेना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी नहीं है। क्योंकि ये जो भी बताएंगे उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ के अंदर, तभी आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को बना भी सकते हैं। सो ये मेरा उनके लिए भी गुजारिश है कि जो अगर बिल्कुल कैजुअली लेके वैसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वाई नॉट टू वेस्ट टाइम। वो बेटर रहेगा वो अपनी फैमिली के साथ या किसी अच्छे उसमें टाइम बिताएं, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, मतलब कई लोग सोचते हैं कि मुझको सब कुछ मालूम है, मुझे जरूरत नहीं है अभी किसी के समझाने की, तो काफी लोग ऐसे भी सोचते हैं। सीनियर होते हैं डेफिनेटली, उनके पास अपना पास्ट एक्सपीरियंस होता है, बट इसका जरूरी नहीं है कि उनको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो। अपनी लाइन में जरूर एक्सपीरियंस होगा सबका, बट वो अगर ये प्रिज्यूम करके बैठे हैं कि मेरा लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है और मेरे से कोई गलती नहीं होती है और मैं गलती होगी नहीं, तो वो एक माइंडसेट बना के बैठे हैं और वो सुनना नहीं चाहते या वो समझना नहीं चाहते, तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी नहीं है। क्योंकि वो भी अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और उनको लगेगा ये सब तो मुझे पता है, और फिर भी वो गलतियां करते हैं। मेरे हिसाब से तो काफी गलती करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी एक रिमाइंडर कॉल्स ही हैं, ये दोबारा से एक बार ये जरूर विचार करें इस पे कि भाई ये चल जो है अगर इसको समझना है तो जरूर बैठें और देखें इसको। अब हम तो वैसे टॉपिक तो मेरा वही है कि 8 मिस्टेक्स जो हम करते हैं, बट यहाँ भी मैंने ये
फर्स्ट बिल्ड इंडिया का स्लाइड क्यों लिया है, तो ये मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप बताना चाहता हूँ कि हर इन्वेस्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टू बिल्ड इंडिया ऑल्सो। सो आप अगर जब भी कोई भी इंसान अगर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो इंडिया के लिए या बिल्ड इंडिया में या इंडिया के अपनी कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग ये देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे 1 लाख रुपया या 5-10 हज़ार रुपया एनी मनी आप बैंक में रखते हैं या एफडी करवाते हैं, तो वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये बैंक में डिपॉजिट होती है। बैंक सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, जब उसके बाद काफी सारा पैसा होता है तो वो सॉरी लोन के तौर पे लोगों को देता है। लोन हाउसिंग लोन भी हो सकता है और ये इंडस्ट्री लोन भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी लोन होता है। तो किसी तरह के भी लोन होते हैं तो वो लोन बैंक देता है जिनके पास पैसा नहीं होता ऑन इंटरेस्ट। सो बैंक तो इंटरेस्ट भी कमाता है और वो आगे लोन भी देता है। तो जब आप अगर लोन लेते हैं तो डेफिनेटली जो लोन लेने वाला है वो उसको यूटिलाइज करता है उस पैसे को, या तो इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में यूज करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करता है, या वो हाउसिंग वगैरह या हाउस वगैरह लेता है। अगर आप उसको फिर इनडायरेक्टली देखते हैं तो वो पैसा भी जो आप वहां से बनाते हैं, जैसे मकान खरीदा तो उसके अंदर जो मटेरियल लगेगा सब कुछ वो इंडस्ट्री से ही बन के आता है। तो अब और या फिर कोई इंडस्ट्री में लगाता है तो अपनी इंडस्ट्री एक्सपेंशन करता है, अपने और लोगों को रिक्रूटमेंट करता है, उससे लोगों को जॉब भी मिलती है और फिर आगे फिर उनके पास जो सैलरीज आती हैं वो लोग आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स भी देते हैं, तो इनकम में भी टैक्स देते हैं और मटेरियल वगैरह के उसमें भी जीएसटी या टैक्स के तौर पे देते हैं। तो इस तरह से कंट्री को वो टैक्स मिलता है और टैक्स अमाउंट से वो कंट्री को भी बिल्ड करते हैं। तो आप ये चेन थोड़ा समझेंगे इस तरीके से कि किस तरह से यू itself आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना कई बार मैंने ऐसे बात भी करी होगी कि हम जो है जो दो तरह की हमारे जो है लोग हैं जो आप कंट्री को बिल्ड करते हैं। एक तो एक आर्मी है या एक जो सोल्जर्स हैं, वो हमारे बॉर्डर्स पे हैं, वो हमारे कंपनी के वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई किसी तरह से कोई गलत का एंट्री ना हो जाए या नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह के आप भी जैसे एज ए इन्वेस्टर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसलिए आप भी क्योंकि कंट्री के लिए सेवा कर रहे हैं तो आप भी एक बहुत बड़े हमारे ये कह सकते हैं कि सोल्जर्स हैं विच इज ऑल्सो हेल्पिंग टू बिल्ड इन इंडिया। सो आप अपने आप को स्मॉल मत समझिए, यू इवन इफ एज वेरी स्मॉल अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग स्टिल यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक्स पे। ये मेन टॉपिक है हमारा 8 कॉमन मिस्टेक्स विच मे डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। सो इसके ऊपर अगर हम शुरू करते हैं तो अभी मैं इसमें भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं और इसे कवच बना के आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्यूचर में, तो क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी अटेंशनली तो मिस्टेक्स करता नहीं है, बट अनइंटेंशनली भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, अनजाने में भी हो जाती हैं। तो मैं वो वाली मिस्टेक्स भी कवर करने वाला हूँ जिसमें कई बार आपको अननोन या नॉलेज नहीं होने की वजह से भी मिस्टेक्स होती हैं, उसको भी हम बताएंगे ताकि सो दैट कि आप जाने या अनजाने में कोई इस तरह की मिस्टेक ना करें जिससे आपकी वेल्थ काफी डिस्ट्रॉय हो जाए। Now mistake number 1, I will take from one by one. So now let us start from the mistakes. So here is the number 1 mistake जिसमें हम ये कह रहे हैं कि investing without any financial goals ये भी आपकी जो वेल्थ है उसको इरोड कर सकती है, आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप कभी पैसा लगाते हैं सिप वगैरह, कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा देता है, कोई इंश्योरेंस में लगाता है, कोई बैंक में एफडी कराता है, तो उसका ना कोई शेर ना पैर, अपने आप का पैसा बचा, आपने कुछ सोचा नहीं है, बस ये पैसा है इसको कहीं लगाना है करके हम लगा देते हैं। तो कोई क्या करता है अपना जाके कोई एफडी करा देता है, उसको मालूम नहीं है एफडी क्यों कराई है, बस इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही हो कोई म्यूचुअल फंड में कोई बोलता है तो म्यूचुअल फंड में जाकर लगा देता है, सोचता है इसमें पैसा बनेगा, थोड़ा वहां लगा देता है, थोड़ा कोई दूसरे स्कीम्स में लगा देता है, कोई पोस्ट ऑफिस में लगा देता है, मतलब कहीं पे भी वो पैसे को लगा देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका मेरा आगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या यूज है। उसको कोई सोच समझ के लगा नहीं रहा है, वो बस जस्ट एक सोचता है कि ये एक्युमुलेट होगा, और क्योंकि उसके ऊपर वो प्रॉपरली
उसका कोई प्लान नहीं है तो वो देखता भी नहीं, उसकी मॉनिटरिंग भी ठीक से नहीं कर पाता है। और अगर मॉनिटरिंग नहीं करता है, उसको किसी गोल से रिलेटेड नहीं रखता, तो उसको पता ही नहीं है मेरा पैसा बढ़ गया या कम हुआ, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता रहता। इससे भी आपकी काफी सारी फाइनेंशियल जो है या वेल्थ जो है वो काफी सारी खराब होती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप फाइनेंशियल कोई गोल से उसको अटैच करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो आपको हमेशा वेल्थ अभी नहीं तो आने वाले टाइम पे वो खराब ही होने वाला है, वो किसी खास काम आने नहीं वाला। तो वाई टू वेस्ट योर वेल्थ अननेसेसरली, एंड इफ यू डोंट प्लान, तो यही होने वाला है। नाउ सेकंड आप देख रहे हैं कि ये जो टेकिंग मोर रिस्क देन यू कैन अफोर्ड, ये सेकंड मिस्टेक है। क्या होता है, जनरली हमने ये सुना है कि मोर रिस्क देन मोर प्रॉफिट, मतलब कहने का आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना आपको गेन होगा। बट आपको ये कोई नहीं बताता कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना लॉस भी होगा। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू शुड ऑल्सो नो। जनरली लोग समझते हैं कि हम रिस्क ले रहे हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो यू शुड नो दैट कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो उसमें लॉस भी ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई पैसा लगाया शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, और अगर आपने कोई रिस्की फंड में लगाया, रिस्की उसमें लगाया, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी एपेटाइट क्या है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 1 लाख रुपया मैंने लगाया, ये सीधा बहुत जल्दी 1.5 लाख हो जाएगा, और ऐसी स्कीम में लगाया जा रहा हो पैसा, या ऐसी शेयरों में लगाया जा रहा है जो आपको ऐसे बताया जा रहा है। उसका पास्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, बट फ्यूचर में भी ऐसा होगा ये कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं कि गारंटी नहीं है। सो आप ये मत मान के चलिए कि अभी मेरा अगर एक पीछे 1 लाख लगाया तो 1.5 लाख हो गया, तो आने वाले कल में भी ये 1 लाख लगाऊंगा तो 1.5 लाख हो सकता है। तो इसीलिए अगर जब भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ करके लगाएं। और ऐसा भी हो सकता है आपने अब की बार 1 लाख लगाया, तो हो सकता है 50,000 भी हो जाए। तो सोच समझ के ही लगाना और ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए रिस्क की जिसको जब हम बात करें, जो ज्यादा कमाने की सोच में लगाता है, उसका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से लगाएं, जो भी है समझदारी से लगाएं, और इसको मान के चलें कि अगर आप ज्यादा गेन के इसमें रहते हो, प्रॉफिट में ज्यादा सोचते हो, तो उसमें लॉस भी ज्यादा हो सकता है। सो यू शुड इन्वेस्ट, जितना आप रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका बॉस है, वो उसका अगर उसने अगर 5 लाख रुपया लगाया, और उसका अगर 5 लाख का 5,000 भी हो गया अगले साल, तो उसे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी करोड़ ऑफ रुपीज, मे बी लैक्स ऑफ रुपीज। बट अगर आपने अपने पैसों में से 1 लाख में से 50,000 लगाया, और वो 50,000 अगले 6 महीने में 40 हो गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी तो नींद खराब हो जाएगी, बिकॉज यू हैव हार्ड अर्न मनी एंड वेरी लिटिल मनी। सो आप उस पर इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये हर बंदे का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं हर एक का जितना रिस्क है उतना ही ले। तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, तो ऐसे चीजों में मत लगाएं जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर या नीचे होता हो, ताकि सेंसेक्स जैसे ऊपर नीचे होता है तो आपका भी दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती रहे, आप बर्दाश्त कर ना पाओ, तो ऐसी चीजों में मत लगाएं। बड़ी समझदारी से ही लगाया जाए पैसा, ये आपको नहीं तो बहुत नुकसान दे सकता है। और दूसरी बात है कि जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं या वो नेबर्स हैं, या कोई ऐसे लोग भी हैं जो किस चीज स्कीम में लगाते हैं, तो ये और रिस्की स्कीम में लगाते हैं, तो आप उनके बारे में अभी इतनी डिटेल में जानते नहीं है कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत रिस्क ले रहे हैं, तो आप भी उनके साथ मिलके गलत रिस्क ले रहे हैं, तो इसमें आप ही का नुकसान होना है। वो तो जैसे कैसे बर्दाश्त कर लें, शायद आप ना कर पाओ। आगे चलते हैं। तीसरी जो जनरल मिस्टेक्स होती है, थर्ड मिस्टेक मोस्टली, ये लोग क्या करते हैं, काफी लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि वो जानते ही नहीं है प्रोडक्ट को, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, फिर भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग इन ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट यू डोंट अंडरस्टैंड, ना जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आता है, या तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल समझे, और उसको समझने के बाद आप जब रियलाइज करें कि हाँ ना आई अंडरस्टैंड, मेरे को सब कुछ इसके प्लस एंड माइनस समझ में आ गए हैं, फिर आप जो रिस्क अगर थोड़ा बहुत लेना चाहते हो तो लीजिए। अगर आपको वो समझ नहीं आता और सिर्फ लोगों के कहने पे आप ले रहे हो, तो वो भी गलत है। पहले आप उसको समझिए, उसको अच्छे से समझने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। अब लोगों को क्रिप्टो करेंसी बस सुना है कि इतना बहुत पैसा बनता है उसमें, किसी का लाखों रुपया बन गया, किसी का करोड़ों रुपए बन गया, इसका प्राइस ये हो गया। मगर क्रिप्टो करेंसी का किसी को मालूम है ये है क्या, इसकी इंडस्ट्री
कहाँ है, इसके जो ओनर कौन है, अगर कल को मैंने जो पैसा लगाया है वो पैसा हमारे को वापस नहीं मिलता है तो हम किसको अप्रोच करें, किसके पास जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उस प्रोडक्ट के बारे में जिसको भी गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, मतलब उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको करें रिकॉग्नाइज, या हम इसको अपनी इसमें फाइनेंशियल्स में लाएं या ना लाएं। जब आप सोच लीजिए कि जब गवर्नमेंट ही नहीं समझ पा रही तो आप इंडिविजुअल कैसे समझ पाएंगे। इसका मतलब तो है ना, काफी रिस्क है उसके अंदर, तो आप उसमें ऐसी चीजों में क्यों लगाना चाहते हैं, आपका पैसा लगाया हुआ पूरा डूब सकता है। हाँ, अगर आप वैसे रिस्क लेते हैं तो मैंने बताया जैसे कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं लो, बट आप ये मान के भी चलो कि इसमें आपके पूरी की पूरी पैसा जीरो हो सकता है। इसी तरह से लोग कई स्टॉक में लगा देते हैं, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स में लगा देते हैं, कोई पूंजी स्कीम्स में लगा देते हैं। नाउ अगर वो उसकी डिटेल में और उसके बारे में उसके प्लस और माइनस नहीं समझते हैं तो उसमें पैसा लगाते ही क्यों है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं करेंसी में करूंगा, कोई कहता है मैं कमोडिटी में करूंगा, तो कोई कुछ किसी को भी कहता है और ब्रोकर बोलता है इसमें बहुत सारा पैसा बन जाएगा, उसमें बहुत सारा, और खुद को हमें नॉलेज ही नहीं है। तो किसी के कहने पे अननेसेसरी पैसा लगाना बिल्कुल नुकसान देगा। ये आप हम थर्ड मिस्टेक जो मैंने लिखी है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जिससे आपकी काफी सारी वेल्थ भी उड़ सकती है। सो जब भी आप करें कुछ भी इन्वेस्ट करें तो आप डेफिनेटली किसी एडवाइस, अपने फ्रेंड हो या मतलब नॉलेजेबल बंदा हो, जो ट्रू फ्रेंड हो आपका, कोई एडवाइजर है तो आप बेशक एडवाइजर से हेल्प लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए, उससे समझिए सारी चीज को, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ना कि आप कई बार आप देखते हो फोन पे आ जाता है, फोन पे आपको कॉल आती है सर आप ये पैसा लगाओ, इसमें लगाओ, आपका ये इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, और वो एग्जाम्पल भी देते हैं, आपको वो सारी ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको विश्वास हो जाता है कि भैया ये जो है ये काफी अच्छी स्कीम है और मेरे को इसमें लगाना चाहिए। बट बिकॉज आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, कल को आपका पैसा डूब जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं होगा। तो इससे बेटर तो यही है कि आप अपने नोन पर्सन से ही मुलाकात करें और उनसे अच्छे से समझे और उनसे अपनी मतलब अपनी भी पोजीशन बताएं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल कितने साउंड हो। कुछ लोग बहुत ही ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनके पास पैसा वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं है, तो वो लोगों को रिस्की फंड में या रिस्की चीजों में लगाने भी नहीं चाहिए। अब मैं लेता हूँ फोर्थ पॉइंट, जो कि फोर्थ मिस्टेक है। हम लोग बहुत जबरदस्त ये भी करते हैं, इससे भी हमारी काफी वेल्थ लॉस होती है, जिससे हम टाइमिंग करते हैं मार्केट। तो आपको ये पहले बता दें, यू कांट टाइम द मार्केट, आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मोस्टली लोग बोलते हैं बट प्रैक्टिकली ये एक फिजिकली पॉसिबल नहीं है आपको कि हम लोग मार्केट की वॉच करते रहें और मार्केट जब लो है तो उस पे खुद खरीद लें, और जब बढ़ गई है तो बेच दें, और फिर हमें आगे पता है गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। मतलब आई डोंट थिंक कोई भी, आई गारंटी कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। हर एक को अंदाज लगाते हैं हर कोई कि भैया कल मार्केट में यूएस में ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। इट्स जस्ट ए मतलब वो है सिर्फ अजम्पशन है। बहुत कैलकुलेशन भी करते हैं लोग काफी तरीके से, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में काफी सारी चीजें बताते हैं, बट वो बहुत ही आप ये कह सकते हैं बहुत ही लो होती है, बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि जब भी न्यूज आपको मिलती है उस तक काफी कुछ पहले ही ऑलरेडी उसका प्राइसिंग हो चुका होता है, उसके अंदर इनबिल्ड होता है। तो आप जब खरीदने जाते हो तो उस टाइम पे ऑलरेडी वो हाई प्राइस हो चुका होता है। सिमिलरली जब मार्केट गिरती है तो आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, वो पहले से ही उस ऊपर हो जाती है, तो आपको टाइमिंग करने का कोई फायदा भी नहीं है। आपने अगर किसी चीज में लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लगाया है, तो जैसे कि अपने आप ही लॉन्ग टर्म में आपने वैसे सेंसेक्स देखा ही है कि कैसे इंडेक्स बढ़ता है, तो लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12-15% का जैसे रिटर्न होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर आप ये सोच के चलें कि भैया अब मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे कई बार लोग सोचते हैं, अभी पीछे भी एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि अभी पीछे 52,000 के करीब भी मार्केट आई थी, पीछे कोरोना के टाइम पे 45 में भी मार्केट रही थी 45,000 पे। तब भी लोगों को हम कहते थे अभी लगा दो, इस मार्केट इज लो, इस गुड मार्केट टू इन्वेस्ट। बट लोग कहते थे यार अभी शायद मार्केट और गिरेगी, अभी जैसे 52 पे चल रही थी तो कह रहे थे 52,000 पे, तो ये कह रहे थे कि 45,000 आ जाएगी, 48 आ जाएगी, तब हम परचेज करेंगे। तो उन्होंने काफी लोगों ने अपना पैसा होल्ड करके रखा हुआ।
उससे क्या हुआ, उसमें 45 पे तो आई नहीं, मार्केट उठ के वहां 52 से 56 58 आ गई। अभी उनको क्या नुकसान ही हुआ, और अभी फिर भी वो सोच रहे हैं शायद मार्केट गिरेगा फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सोचते रह जाएंगे और उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आज भी चाहे आप हाई मार्केट जो आपको लग रही है उस पर भी लगाओगे, आने वाले फ्यूचर में जब ये मार्केट 65,000 की हो जाएगी या 75,000 की, तो आपको 58 पे भी खरीदा हुआ सस्ता ही लगेगा। तो इस तरह से जब मार्केट ऊपर होती है तो जितने भी परचेजिंग पहले की होती है वो सस्ती ही दिखती है, तो आपकी हमेशा बाइंग आने वाले फ्यूचर से हमेशा सस्ती रहेगी। इसलिए जब भी आपके पास पैसा है आप उसको होल्ड मत कीजिए, आप उसको जल्दी से जल्दी लगाइए। अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। हाँ, ये जरूर है, आप गाइडेंस जरूर ले लें कि कितना पोर्शन मुझे कौन से इक्विटी में लगाना है, कितना मुझे डेट में लगाना है, और दोनों का बैलेंस करके भी लगा सकते हैं, जो कि आपको अपना आपका एडवाइजर समझा सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस करंट सिचुएशन और आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। अब मैं आपको एक इसके बाद एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप ये वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि जनरली लोग इधर उधर देख के किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और इस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। ए भाई, ए भाई जरा स्कैम से बचो, ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी, लॉटरी ही नहीं कैश प्राइज भी, ओटीपी ही नहीं। क्यूआर भी। मैडम आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अपना यूपीआई पिन देंगे प्लीज। यूपीआई पिन? कॉल सेंटर से जो कॉल आया है डिटेल्स उसे कभी देना नहीं, पिन नहीं, नंबर नहीं, काम नहीं, एड्रेस नहीं, पासवर्ड नहीं, कभी नहीं। थैंक यू। ए भाई जरा स्कैम से बचो, ए भाई। फ्रेंड ने जो पैसे मंगाए हैं करना उससे पहले वेरीफाई है। वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, तरह तरह के वॉइस नोट से, डीपी से स्टेटस तक, लास्ट सीन से इमोजी तक, अच्छे से जांच करो। ए भाई जरा स्कैम से बचो, ए भाई स्कैम का सर्कस है और प्यारे स्कैम ये सर्कस है, और इस सर्कस ने बड़े को भी, छोटे को भी, दादा को भी, पोते को भी, मम्मी को भी, पापा को भी, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक घेरा है। जरा देखो, जरा सोचो, जरा स्कैम से बचो। हाँ, आपने देखा होगा ये वीडियो और पहले भी शायद देखा हो, मालूम नहीं है। मतलब ऐसे मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, बोल तो नहीं हो रहे, मतलब मैं काफी थियोरेटिकल बातें भी कर रहा हूँ और काफी इसके बारे में बातें कर रहा हूँ, बट मैं क्यों जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ कि टाइम भी बहुत कम है और मेरे को कवर भी करना है। तो 45 मिनट्स के अंदर मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा आपका टाइम ना लूं, तो कोशिश मेरी यही है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको ये सारी चीजें बता दूं। और मेरा ख्याल आपने ये वीडियो देखा ही है, इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि भाई किस ढंग से लोग जो है बहुत स्कैम्स में फंस रहे हैं। और ये डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को, जितने भी लोग भी अटेंड करें, उनको पर्सनली ये वीडियो भेजूंगा, ताकि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स वगैरह को ये शेयर करें और एजुकेट करें, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ऐसी ऐसी जो है हरकत करने से आपका काफी सारा बैंक भी खाली हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, मिस्टेक्स जो जनरली करते हैं। दिस इज द फिफ्थ मिस्टेक विच जनरली पीपल डू। फॉर एग्जाम्पल, ये लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन जो है, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही जगह पे सारा पैसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने का बहुत डर होता है। आपने पहले भी सुना होगा हमारे बुजुर्गों से भी
कि वो यही कहते थे कि भाई कभी भी ऑल डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, कभी भी आप एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रखें, क्योंकि एक बास्केट गिरेगी या टूटेगी तो सारे एग्स आपके नुकसान हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम भी अपने बकेट्स बनाते हैं डिफरेंट गोल्स के लिए, हर एक गोल्स के अंदर अलग अलग तरीके से हम उसकी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, जिससे आपको ये भी रहता है कि मेरी अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ भी तो मैनेज हो जाएगा। बट एक ही जगह लगा देने से आपका नुकसान हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोग रिटायर होते हैं, अब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद काफी सारा पैसा मिल जाता है। अब उनका जो आगे का जीवन होता है वो मैक्सिमम उनके इंटरेस्ट पे चलता है या एफडीज पे चलता है। अगर वो एफडी पे चलता है तो उस केस में आपको ये भी रहता है कि भाई जो है मेरे को मैक्सिमम एफडी का इंटरेस्ट मिले। तो उस एफडी में कुछ लोग तो ऐसी भी बेवकूफी कर जाते हैं कि वो कॉर्पोरेट एफडीज या ऐसी प्राइवेट एफडीज में डाल देते हैं पैसा, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट 2-4% एक्स्ट्रा मिलता है, बट वो कंपनी कब तक वो उनका इंटरेस्ट दे पाएगी? कल को ऐसा ही ना हो कि वो कंपनी जो है प्रिंसिपल भी ना दे पाए, तो अगर कंपनी डूब जाती है। तो इसलिए वो तो ऐसे ऐसे जो है चीजें देख के रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि सारी अमाउंट आपने अगर वहां डाल दी और इस लालच में, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है, आने वाला फ्यूचर आपका बिल्कुल खत्म हो सकता है। अगर कई लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग कॉर्पोरेट बैंक्स में भी सॉरी ये कोऑपरेटिव बैंक्स में भी पैसे रख देते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये भी तो आरबीआई के अंडर है, कंट्रोल में है, बट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आरबीआई कंट्रोल करता, आरबीआई उसकी सिर्फ वर्किंग कंट्रोल करता है। तो आपको भी ये जो लालच दे देते हैं कि 2% 1% कोऑपरेटिव बैंक है या आरबीआई के अंडर आता है, उसका ध्यान आपने रखना है कि एक्चुअल में वो बैंक कहीं बैंक करप्सी पे तो नहीं जा रहा है, कल को वो बैंक ही बंद हो जाए तो आपका पैसा, ठीक है गवर्नमेंट आपका पैसा देगी बट उसके अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही देगी, आपका सारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। नो बैंक्स गिव यू द गारंटी मोर देन 5 lakhs, इससे ज्यादा कोई गवर्नमेंट भी गारंटी नहीं देती है पर अकाउंट। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, और बैंक में भी अकाउंट खोलते हैं तो जरूरी नहीं है आप सारा पैसा एक ही बैंक में रखें, आप भी 2-3 एटलीस्ट बैंक खोल के रखें, ताकि कभी किसी बैंक में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आपका पैसा अगर रुक जाए तो बाकी दूसरे बैंक्स में भी आपको पैसा मिल सके। इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा ना रहे कि आपका सारा पैसा ब्लॉक हो जाए, इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें। इसका मतलब यही है कि लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी, तो हम भी अलग अलग टाइप के कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं, कोई बैलेंस फंड होता है, कोई इक्विटी फंड होता है, कोई डेट फंड होता है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट होती है उसको समझ के उसको कितना डेट में डालना चाहिए, कितना इक्विटी में डालना चाहिए, कितना बैलेंस फंड में डालना चाहिए, या कितना हम लोग दूसरी स्कीम में जैसे गोल्ड वगैरह है उसमें लगाना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल हम उस सेफ्टी फैक्टर को देख के उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ताकि अगर किसी चीज में अगर लॉस हो तो इतना लॉस ना हो कि सब पूरा पूरा सब पे इफेक्ट आ जाए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज द अनदर पॉइंट विच वन शुड लुक एट, इसको जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। 6th मिस्टेक जो हम जनरली करते हैं, ये भी आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी मार्केट में हॉट चल रहा होता है, कोई कहता है यार यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आजकल ये पर्टिकुलर जगह पे बहुत जमीन जो है वो सस्ती मिल रही है, या फ्लैट्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, या ये नई रोड एरिया डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत सारे चीजें सस्ती मिल, आने वाला फ्यूचर में बहुत पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, इसमें इन्वेस्ट करो। और फिर आगे वालों का भी नहीं पता रहता है वो स्कीम जो चला रहे हैं वो भी कितने रिलायबल हैं। और इसी तरीके से हम लोग जैसे क्रिप्टो करेंसी है, आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में लगाओ डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, एक साल में इतना हो जाएगा। और ज्यादातर यंगस्टर्स हैं वो इसी तरह अट्रैक्ट होते हैं कि मेरा पैसा जितनी जल्दी बढ़ सके। और क्रिप्टो करेंसी तो एक ऐसा है जो पुराना एक्सपीरियंस दिखा के लोगों को बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसमें लगाओ इसमें लगाओ, बट जो कह रहा है वो तो उसकी तो कोई डील हो सकती है बैक साइड में विद दी ऑपरेटर, बट आपको तो आपका पैसा लगने वाला है, कल को आपको नुकसान हो गया तो आप किसको पकड़ोगे? इसमें तो कोई है ही नहीं, आपको ना कोई रेगुलेटर है ना कोई ओनर है, तो इसमें आप किसी को नहीं पकड़ पाएंगे, आप सिर्फ अपना नुकसान ही करेंगे। तो इस लालच में जाके आप करना ये भी ठीक नहीं होता है। तो जो चीज हॉट है इसका मतलब नहीं आप करो। सिमिलरली पीछे आपने देखा था कि थोड़े टाइम पहले आईपीओ का बड़ा बूम चल रहा था,
अब आईपीओ मार्केट में सारे शेयर मार्केट में लगाओ जी, आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं, ऊपर से टीवी एंकर्स भी यही बोल रहे हैं बहुत बढ़िया आईपीओ है, इसमें लगाओ या बहुत पैसा बनेगा। आपने देखा है, अभी आपके सामने ही रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि पीछे पेटीएम का आईपीओ भी आया, एलआईसी का भी आया, जोमेटो का भी आया। अब जिन लोगों ने भी उसमें पैसे लगाए ये सोच के कि बड़ा पैसा बन जाएगा, बहुत हॉट है, हॉट न्यूज थी बस, और आपने देखा ही है उसमें लोगों को कितना पैसा नुकसान हुआ है। अब कोई भी उसमें से शेयर जो है आज की डेट में वो अपने प्राइस पे भी नहीं है, और काफी 50-50 40-60% तक वो डाउन प्राइस में चल रहे हैं। इसलिए हम लोग ये जो आदत है कि भैया हॉट चल रहा है, मेरे फ्रेंड ने बोला मैं भी लगा रहा हूँ तुम भी लगाओ, तो बगैर समझे बगैर सोचे आप सिर्फ हॉट समझ के स्कीम में लगा रहे हैं, तो इससे बेटर ना ही लगाएं, क्योंकि इसमें आपकी फिर वेल्थ एरोड होने वाली है। इट्स बेटर not to take risk unless and until you understand। मैंने बार बार यही बोलता हूँ, जब तक आप इस चीज को समझ लें, उसके रिस्क एपेटाइट को समझ लें, तभी लगाएं। शेयरों में भी जो लगाते हैं वो भी चाहे सिर्फ टिप्स पे चलते हैं, जो वो भी नुकसान खाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आपको बताता है तो आप खुद भी उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप लगाएं, वरना कभी डायरेक्ट शेयर्स में भी मत लगाएं। अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट मिस्टेक जो है, जनरली जो 7th मिस्टेक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट फास्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी ये खत्म कर सकूं मैं, ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। तो अभी 7 मिस्टेक्स पे हम हैं ही हैं। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि कई चीजें ऐसी होती हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर बायसेस। हम लोगों के कई हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हम सोचते हैं और ये सही होगा और ऐसा होगा करके, ये हमारा एक बिहेवियर बायसेस होते हैं। जैसे इसमें कई तरह के बायसेस हैं, एंड आई विल नॉट कवर ऑल दी बायसेस, बट आई विल गिव यू सम स्मॉल हिंट। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ बायसेस को इसमें कवर करता हूँ। अगर सबको ये डिटेल में जानना होगा तो फिर हम उसके लिए अलग ही वो लेंगे वेबिनार। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कंफर्मेशन बायस है। तो कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कोई कंफर्मेशन दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी पे एंकर ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर शेयर जो है ये 3 महीने में या 6 महीने में या अगले उसमें डबल या ट्रिपल हो जाएगा या इतने टाइम्स हो जाएगा। अब वो आप दूसरे चैनल्स में भी देखते हो, वो दूसरे भी एंकर्स कुछ इसी तरह की बात कर रहे होते हैं। फिर आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो, और फ्रेंड भी ऐसे बोलता है हाँ यार मेरे को भी लगता है ये वाला शेयर जो है ना डबल होगा। एंड किसी ने भी अपने फ्रेंड ने या किसी ने भी ढंग से उसकी एनालिसिस नहीं की होती है, आप सिर्फ सुना और लगा दिया, और पता लगा वो टीवी एंकर का तो काम ही है, क्योंकि उसको तो सैलरी मिलती है, और वो सैलरी के ऊपर अगर उसको पता होता तो वहां पे सर्विस क्यों करता। 50,000 1 लाख रुपए की सर्विस करके वो इतनी बड़ी बड़ी टिप्स बता देते हैं, अभी इसमें डबल हो जाएगा ट्रिपल, तो खुद का पैसा क्यों नहीं लगाते हैं वो लोग। आप कभी भी सुनेंगे, हमेशा हम उनसे इंस्टेंट डिक्लेरेशन में सुनेंगे तो ये यही बोलेंगे कि भाई हम हमारा पैसा इस स्कीम में नहीं लगा या हमारा पैसा इस शेयरों में नहीं लगा हुआ, बट ये हम एडवाइस दे रहे हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का भी वही है कि वो अपना पैसा इसलिए नहीं लगाते बिकॉज दे आर टोल्ड टू कि भाई ऐसा बोलना है। इसमें 60% हो सकता है आपकी एडवाइस ठीक हो, पर 30-40% रॉन्ग भी होती है, और जो आपकी बहुत सारी वेल्थ भी इरोड कर सकती है। तो इसका मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप किसी के कहने पे मत जाएं, सिंपली हर चीज को पहले खुद अगर समझते हो, एनालाइज कर सकते हो तो इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। ये सबसे बेस्ट है। अपनी कम से कम वेल्थ तो नहीं खराब होगी, बनेगा नहीं तो डूबेगा तो नहीं कम से कम, इसलिए उस चीजों को थोड़ा सा समझ के चलें। दूसरी है एक ऑप्टिज्म बायस। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाया था पास्ट में, या किसी पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाया था, उसमें आपने काफी सारा पैसा बना लिया, अब वो गिर गया, उसका मार्केट में प्राइस गिर गया, काफी डाउन हो रही है मार्केट में उसकी प्राइसिंग। कुछ क्या कारण है आपको नहीं पता है, बट आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा शेयर है, इसमें तो बहुत ज्यादा मैंने पैसा कमाया हुआ है, और ये मेरे दोस्तों ने भी कमाया है, आजकल इसका प्राइस गिर गया है, डाउन हुआ पड़ा है, तो क्यों ना हम इसे खरीद लें, क्योंकि ये वापस बाउंस बैक करेगा। अब ये जो वापस बाउंस बैक करेगा, ये आपको कैसे पता करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका एनालिसिस किया ही नहीं है, क्यों गिर रहा है आपको मालूम ही नहीं है। हो सकता है वो कंपनी बंद होने के कतार में आ जाए और आप समझोगे ये वापस बाउंस बैक करेगा, तो आप जिस भी प्राइस पे खरीदेंगे पता लगा वो तो जीरो हो गया, तो उसका फायदा ही क्या है। तो इसलिए जो ऑप्टिमिज्म होता है, एक सोच होती है कि मैंने इसमें कमाया, पहले पास्ट में भी कमाया, और अब डाउन हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलत है।
आप उस पे मत जाइए, अपना सोच समझ के दोबारा से उसको चेक कीजिए, नहीं तो आपके पास और बहुत सारी ऑप्शन हैं। उसमें क्यों जाना है जहाँ डूब रही हो नैया, उसी में डूबना है आपने खुद को भी, उसका क्या फायदा है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान देना होता है। एक होता है लॉस अवर्जन बायस। लॉस अवर्जन का बायस मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल लॉस बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते, बर्दाश्त करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं 1 लाख लगाऊं, वो एक पैसा भी नीचे नहीं होना चाहिए, 5,000 भी नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। तो जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, वो बैंक एफडीज वगैरह में ही पैसा लगाएंगे या किसी पर्टिकुलर इस तरह से। बट वो ये सोचते हैं कि मेरा पैसा नीचा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। तो उससे उसका उनको फायदा भी नुकसान उतना ही कम होता है, क्योंकि बैंक एफडीज वगैरह में आपको पता है टैक्स देके क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप उसमें से कुछ परसेंटेज भी अगर रिस्क लेना चाहें, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा, रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने अगर ढंग से लगाया, उसका इंटरेस्ट रेट वेरी होता है कई चीजों में। तो अगर इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहा है बैंक में एफडी है, और अगर कोई वेरी हो रहा है, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट देता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सारा पैसा आप लगाएं, बट कुछ पोर्शन आप लगाएं। सिमिलरली आप जैसे मार्केट में लगाते हैं म्यूचुअल फंड या पीएमएस स्कीम्स होती हैं, तो उसमें भी आप अपना कुछ पैसा लगा के देखें, वो भी अंडर गाइडेंस। ऐसे नहीं कि मैंने बोला और आपने, मैंने इसलिए पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी ये जो भी बातें कर रहा हूँ, इसका एडवाइस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे मत जाइए। ये सिर्फ विदाउट ए एडवाइजर कुछ भी इन्वेस्ट करना, और विदाउट हैविंग ए नॉलेज कुछ भी इन्वेस्ट करना, वो भी समझदारी नहीं है। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजों को पहले समझना है, उसके बाद ही आपने इन्वेस्ट करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप समझे भी नहीं और इन्वेस्ट भी ना करें, वो भी एक वेल्थी रोड वाली बात है। क्योंकि जनरली लोग जब बैंक एफडीज में आप देखते हो डाल देते हैं, और बेचारे जो रिटायर्ड होते हैं, अब आपने 12% इंटरेस्ट रेट से देखा हुआ, वो रेट नीचे गिर के अभी 6% आ गया। आने वाले फ्यूचर में ये 3-4% भी आ सकता है। अब लोगों का कई होगा ये सोचा कि नहीं ये वापस बढ़ के 8% आएगा, 9% आएगा। वो हो सकता है उनकी सोच गलत भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर आप उस पे जाएंगे और उनके इंटरेस्ट रेट हैं उनको देखिए ना आप अपने इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में सोच के सोचते हैं कि भी वापस बाउंस बैक कर जाएंगे, 8% आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल तो है कि इतना सोचना भी गलत है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ट्रेंड में जाके आप देखें, तो उस एक कोई तो 1-1%, 2-2% ज्यादा कोई दे भी नहीं रहे हैं। तो आपका क्या लगता है कि ये 8% हो जाए? अगर हमारा कंट्री भी अगर डेवलपिंग में जा रहा है और कल को डेवलप होता है, तो ये 6% से भी 3%, 2% ही आने वाला है। तो आपके पैसे का जो है इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती। आज की डेट में 5-6-7% की इन्फ्लेशन है, और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहे हो 5% का, तो आप तो अपने पैसे को वैसे ही लॉस में जा रहे हो, उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। तो आप सोचो आपका पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसलिए आपको ये भी सोचना जरूरी है कि भाई कहाँ पे आपको इंटरेस्ट सही मिल रहा है, उसमें लगाएं। और जब कुछ पैसा जो है आप ऐसी जगहों पे भी लगाएं जिससे आपकी इन्फ्लेशन भी बीट हो, और इसको समझ के लगाएं। आगे मैं आपको नेक्स्ट जो 8th मिस्टेक है वो भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है। अभी लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक चीज है जिसको मैं बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज मीनिंग बाय दिस। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर भी जो है, कोई भी स्कूल के अंदर अपने फाइनेंशियल्स के बारे में, आपको बजट के बारे में, आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सेविंग्स के बारे में, इस टाइप की कोई भी स्कूल एजुकेट नहीं करता। आपको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि ये मार्क्स इसमें साइंस में लाओगे तो आगे यहाँ एडमिशन हो जाएगी, आगे ये बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मगर आपको फाइनेंशियल्स के बारे में कि आप जो पैसा कमाते हो उसको, उसका मतलब क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो मोस्टली कोई भी कॉलेज या स्कूल नहीं पढ़ाता। उससे होता क्या है, कुछ लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या कुछ ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा वो जाके 10th 11th 12th में पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत उनको भी बैकग्राउंड मालूम होगा, बट आई एम श्योर कि उनको भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जाता, वो भी बेसिक्स ही जानते हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक आप ये समझ ना लें कि भैया इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, बजटिंग क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है। कुछ लोग से इनकम माइनस एक्सपेंस, जब अपनी इनकम जो बना करते हैं उसमें से एक्सपेंसेस को करने के बाद जो बचता है उसको सेविंग कहते हैं। और कुछ लोग इनकम में से सेविंग्स को रख के अलग करके और उसके बाद पैसे को एक्सपेंस करते हैं। तो ये क्या मेथड ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ता है। इसी तरीके से इमरजेंसी फंड क्या होता है,
आपको इमरजेंसी फंड के बारे में कोई नहीं बताता है, तो वो भी आपको समझना होता है। कुछ लोग अब पैसा अपना लगा देते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस में लगा देगा, कोई एफडी में लगा देगा, कोई म्यूचुअल फंड में, कोई गोल्ड में। इस तरह से वो सब जगह पैसे तो लगा देते हैं, बट दे डो नॉट नो कि एक्चुअली मुझे कितना रेशियो लगाना चाहिए। अगर मैंने इमरजेंसी फंड रखता तो कितनी अमाउंट मेरे को इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए, कितनी मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कितनी मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो बगैर मेजर, किसी ने बोला यार ये इंश्योरेंस ले लो, वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसको हेल्थ की कम है ज्यादा है उसको उसको समझ भी नहीं है। सेम वे आप लगा दें भैया आप एफडी में डाल दो, जो पैसा आया बैंक एफडी में डाल दो। अरे उसमें डालने से आपको क्या फायदा होने वाला, आप वो देखो तो सही। अब पैसा तो आपका सेव हो गया, बट आपको क्या वो आने वाले 10 साल में बीट करेगा आपका इन्फ्लेशन। कई बारी आप हमारे जो सीनियर्स हैं या उन बड़े लोग होते हैं, फादर या वो, तो वो क्या सोचते हैं कि यार आगे बच्चे अपने आप देखेंगे, मैं तो बैंक में डाल दिया। अब ये नहीं समझ रहे कि आपने पैसा कोई भी खुद खा के जाने वाला नहीं है, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाला है। बट अगर वो सही जगह इन्वेस्ट करता है तो उसको 10 साल के बाद जो पैसा बैंक एफडी में मिलता है, हो सकता है 10-15 साल के बाद जो पैसा उसको वो आपके किसी और स्कीम्स में मिलेगा, वो कई मल्टीपल टाइम्स होगा। तो अगर आप समझ के उसको भी इन्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, और उनको भी अगर कुछ अच्छी रकम मिले आने वाले समय में, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसलिए कितना गोल्ड में लगाना है, कितना पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में लगाना है, कितना हमें एफडी में लगाना चाहिए, ये सब चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको लिटरेसी भी होना जरूरी है। तो ये बगैर लिटरेसी के जब भी हम कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी आपको नुकसान देती है, और ये आपकी काफी सारी वेल्थ को एरोड करती है। आने वाले टाइम में वही होता है। तो ये मैंने अभी आपको सारी 8 स्कीम्स ले ली, और सर 8 पॉइंट्स ले लिए हैं, जो भी आपको मिस्टेक्स बताना चाहता था अपनी तरफ से बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ इससे समझ में आया होगा। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बता दी और आपको सॉल्यूशंस तो बताए ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ छोटे ब्रीफ में ये कि कौन कौन से 8 मिस्टेक्स हैं, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, आप नोट कर सकते हैं चाहे, और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग, फर्स्ट है इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल्स, आपका एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, टेकिंग रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड, आप अपने जितना भी रिस्क लेते हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही रिस्क लें, उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मत लीजिए, वो आपको अपनी वेल्थ ही खराब करेगा और आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। तीसरा, इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल दैट। फोर्थ, आई मेंशन टाइमिंग द मार्केट, आप मार्केट का बिल्कुल वेट मत करें, जब भी आपके पास अगर पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और नहीं है तो एनीवे यू हैव टू वेट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आगे आ जाते हैं कि लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई जरूर करें। सिक्स्थ, अगर आप लेते हैं इन्वेस्टिंग इन हॉट व्हाट इज हॉट, ये भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बगैर सोचे समझे किसी भी ऐसी स्कीम में मत लगाएं। 7th पॉइंट, अगर हमने डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर बायसेस, तो वो जो आप एक बायस अपने मन में लेके चलते हैं या लोगों के मन में होता है उसको लेके चलते हैं, वो भी सही नहीं है। आप सोच समझ के उसके एनालिसिस करके बाद ही इन्वेस्ट करें। 8th है हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जरूर किसी नॉलेजेबल बंदे से एडवाइस लें और उससे अपने पैसे को इन्वेस्ट ढंग से करवाएं। अब मैंने बात करी कि जैसे मैंने सारी प्रॉब्लम बता दी, तो सोल्यूशन क्या है। तो इस चीज का सोल्यूशन तो आपको कुछ दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक ध्यान देना है कि आपके लाइफ के अंदर एक कृष्ण जैसा एडवाइजर होना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी कि जब भी कृष्ण साथ रहे हैं अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ, तो सारे उन्होंने वो जीते हैं, अपने जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें ये सब ने जीत ली है। बट एक जो लड़ाई पांडव भी हारे थे, पर वो आपको याद होगा कि वो लड़ाई क्या थी, वो थी चौरस, जहाँ पे इन्होंने शतरंज खेली थी। उस टाइम पे इनके जो गाइड थे वो उस टाइम नहीं थे, और गाइड ना होने की वजह से आपको मालूम है वही एक ऐसी लड़ाई है जो अब सारी दुनिया याद रखती है। तो गाइड की बहुत जरूरत है, तो आप जरूर लीजिए। और आपके पास अपने अगर फाइनेंशियल एडवाइजर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको मालूम है, तो आप जरूर उनसे हेल्प लीजिए। और अगर आप समझते हो कि भाई मैं आपको किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, इतना समझने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं आप किसी के हेल्प में काम आ सकता हूँ, तो आप
तो मैं अभी इसी ग्रुप में आपके पास एक गूगल फॉर्म होगा मेरा, जिसमें आपको मैं सेंड कर दूंगा, जिसमें आप अपना नाम और फोन नंबर वगैरह दे देंगे और आप भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ पर्सनली कुछ टाइम दे सकूं। उसमें मैं आपसे अपॉइंटमेंट करके ही, या मेरे जो भी ऑफिस के लोग हैं आपको कांटेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, और कुछ टाइम आपको उसमें 45 मिनट से या आधा पौना घंटा जरूर लगेगा, लिटिल मोर, डिपेंडिंग अपॉन आपकी आपकी फाइनेंशियल समझने में। तो और सेकंड मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी है आप भरें, अगर फॉर्म वही लोग भरें जो सीरियस हो, बिकॉज टाइम सबका कीमती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी टाइम खराब हो और मेरा भी टाइम खराब हो। अगर आपको लगता है आप सीरियसली कोई उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और उसके बाद रियलिटी में कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या समझना चाहते हैं, या उसको इन्वेस्ट करने के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो सब मैं करने को तैयार हूँ। बट पॉइंट मेरा यही है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एडवाइस ली और आप बैठ गए और आगे एक्शन ना लें, तो उसका फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता आप फिर इस फॉर्म को भरें। अगर वही जो सीरियस है वही सिर्फ भरें प्लीज। आई शुड थैंक यू एवरीबडी। और मैं अभी इसलिए, क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं हम लोग इस टाइम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे। मैं आपको अपना ईमेल आईडी और ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। मेरी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि भाई हम लोग क्या, हमारी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स को सर्विस देती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस टाइप की सर्विसेज हैं, आप मेरी वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो आप बेशक पोस्ट कर सकते हो, और अगर आप गूगल फॉर्म भी भेजेंगे वो मेरे पास ही आएगा। तो आप लोगों से थोड़ी बहुत जो भी जानकारी फोन वगैरह पे लेनी और लेने के बाद अपॉइंटमेंट करेंगे, और उसके बाद ही मैं हम लोग कुछ 1 to 1 बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आई शुड नाउ थैंक यू एवरीबडी। एंड थोड़ा सा डिले हुआ है तो 15 मिनट, बट आई स्टिल विल से थैंक यू एवरीबडी। एंड इस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा आगे भी चलाते रहेंगे, पहले भी चलाते रहे, जो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही होंगे। इसमें मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं भी जो एडवाइस दूंगा या आपको दूंगा तो उसमें मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप ये इन्वेस्ट करें ही या इनसे करें ही। बट मेरा मतलब है मेरे से करें या किसी से भी करें, बट आप जो भी करने वाले हैं वो करें जरूर। अगर टाइम अपना भी खराब करें और अब तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर इन्वेस्ट भी करें और समझ भी करें। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस फिनिश दिस एंड सी यू अगेन।